بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج لندن کی ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کی جائے گی۔ شہباز شریف، حسن، حسین نواز، اسحاق ڈار سمیت دیگر افراد شرکت کریں گے۔ میت آج رات لندن سے پاکستان کے لیے روانہ کی جائے گی۔ شہباز شریف خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ میت کے ہمراہ پاکستان آئیں گے۔ انتہائی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے جب ہم جیل میں تھے نواز ایک پختہ ارادے سے انہوں نے پارٹی کے لیے سامنا کیا۔ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر نواز شریف انتہائی دکھ اور صدمے میں ہے۔ پیرول کی درخواست پر نواز شریف نے نہیں میں نے دستخط کیے۔ شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، قوم سے بیگم کلثوم نواز کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اپیل۔ حسین نواز چچا شہباز شریف سے گلے ملے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بیگم کلثوم نواز کی ریلت جاتی عمرہ لاہور میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ جمعے کی شام 5 بجے جاتی عمرہ میں ادا کی جائے گی۔ رسم کل اتوار جاتی عمرہ میں ہی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے پیرول میں 5 دن کی توسیع کر دی۔ احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ نیب ریفرنس کی سماعت۔ جے آئی ٹی نے اپنے پاس والیوم 10 کی کوئی کاپی نہیں رکھی تھی۔ کتنی کاپیاں تھیں یہ بتانے کے لیے مجھے سپریم کورٹ سے ریکارڈ دیکھنا پڑے گا۔ واجد ضیاء کی دوران جراح جوابات۔ خواجہ حارث نے ایون فیلڈ ریفرنس میں واجد ضیاء کا بیان ریکارڈ پر لا کر تضاد لکھوا دیا۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ نواز شریف اور مریم نواز کے وکیلوں کے دلائل مکمل ہو چکے۔ آج نیب کے وکیل دلائل دیں گے۔ عدالت کا کہنا تھا مفروضے کی بنیاد پر کرمنل سزا برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ بیگم کلثوم نواز کا انتقال، پارلیمنٹ کا آج ہونے والا مشترکہ اجلاس پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا، جس پر مسلم لیگ نون نے تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارت کیٹ کو ختم کرنے اور وزارت ہیلتھ سروسز کی منظوری دی جائے گی۔ چیئرمین بورڈ آف سرمایہ کاری کی تعیناتی کی منظوری اور پاکستان نیوی ایکٹ 1960 میں ترمیم بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا آئی ایس آئی کوارٹر کا دورہ، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آئی نے استقبال کیا، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم بولے آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں شامل اور پہلی دفاع لائن ہے۔ خزانہ خالی ہے، انہی وسائل اور انہی حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ فریٹ کو بھی ڈبل کریں گے اور پیسنجرز کو بھی ہم ساری سہولتیں دیں گے۔ مشن کا آپ سر قلم کر دیں، مجھے ایمان ہے میرا کہ یہی ریلوے کے افسر، یہی مزدور اس ریلوے کو آگے لے کے جائیں گے۔ شیخ رشید کا 1 سال میں ریلوے کے خسارے سے نکالنے کا عزم، میڈیا سے گفتگو میں کہا وسائل نہیں پھر بھی کام کریں گے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بہت سی پرانی ٹرینوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے کا پیس بدل کر ٹرینوں کو چیک کرنے کا بھی اعلان۔ پنجاب سے خالی ہونے والی نشست پر ضمن انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز، سکرونٹی 18 سپٹمبر تک کی جائے گی۔ ضمن انتخاب میں 3 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ نشست گورنر پنجاب چودھری سرور کے استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی۔
चित्राल में खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह जबरदस्ती या बगैर मुशावरत शादियां तय करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स जारी। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मसाइल और इम्तिहान में नंबर कम आना भी खुदकुशी की वजह बनता है। इलाके में एक भी माहिर नफ्सियात न होने से खुदकुशी के रुझानात को फरोग मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआई खान में टारगेट किलिंग से मुतालिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दफ्तर में बैठकर बनाई जाने वाली रिपोर्ट कबूल नहीं। अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अमन व अमान के क़याम के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस और सरकारी अफसरान की दोहरी शरीयत केस में साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सरकार के मामले में दखल नहीं देना चाहते। इस मामले पर जितनी मदद कर सकते थे वो अदालत ने की। सुप्रीम कोर्ट का तत्हीर फातिमा वल्दियत केस में एफआईए को तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस ने तत्हीर फातिमा के वालिद को मुखातिब करके कहा, आपने इस बच्ची के कई साल जाया कर दिए, गुजरे सालों का खर्च आपसे लिया जाएगा। केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट गुमशुदा बच्चों की अदम बाजियाबी पर बरहम आईजी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने केस के फोकल पर्सन डीआईजी क्राइम ब्रांच गुलाम सरवर जमाली को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए, ये है आपकी कारकर्दगी, कागज का टुकड़ा लेकर आए हैं। आईजी सिंध को केस किसी फाल डीआईजी के सपुर्द करने की हिदायत। आईजी सिंध कलीम इमाम की जेर सदारत अहम इजलास। एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान शरीक। मुहर्रम में अमन व अमाल की सूरत हाल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ इंसदाद इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। आज सीनियर पुलिस अफसरान शरीक। मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल और ज़ाकिरीन के खुतबात में खानवादा अहले बैत की मैदान करबला में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी बड़ी देरी को उन्होंने एक इंतहाई मजबूती के साथ उन्होंने जब हम जेल में थे मियां नवाज एक पुख्ता इरादे से उन्होंने पार्टी के लिए सामना किया। जो एहतसाब कोर्ट ने जो फैसला किया है सफ़ा 171 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई करप्शन का सबूत नहीं ला सका, उनके खिलाफ कोई करप्शन की कोई एविडेंस नहीं है। और अगली अहम खबर, एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के बाद JIT ने क्या वॉल्यूम 10 की कॉपी अपने पास रखी? ख्वाजा हारिस ये कहते हैं JIT ने अपने पास वॉल्यूम 10 की कोई कॉपी नहीं रखी। इवन फील्ड रेफरेंस में आपने बयान में कहा था JIT ने एक कॉपी अपने पास रखी है। मैंने बयान में ये नहीं कहा कि JIT ने कॉपी अपने पास रखी। वाजिद ज़िया की जानिब से जवाब दिया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में वजारत कैट को खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मंजूरी भी दी जाएगी। और जराये का मजीद कहना है कि एजेंडा में चेयरमैन बोर्ड ऑफ सरमायाकारी की तैनाती की मंजूरी भी शामिल है। असासा-ए-जात की रिकवरी यूनिट की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा होगा। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनकम टैक्स
तरमीम ऑर्डिनेंस भी एजेंडे में शामिल है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में वज़ारत कैट को खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विस की मंजूरी भी दी जाएगी। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। फेस बदलकर ट्रेनों को चेक करूंगा, ऐसा कहा गया शेख रशीद की जानिब से। 20 रोज में 2 ट्रेनें तैयार की गईं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से यह कहा गया कि जिन मजदूरों ने दिन रात काम किया उन्हें 5-5 हजार इनाम देंगे। जब तक मैं वजीर हूँ किसी गरीब से उसकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। शेख रशीद का यह कहना है सबसे बड़ा टास्क खसारे को खत्म करना है। 1 साल के अंदर रेलवे को खसारे से निकाल लेंगे। हमारे पास वसाइल नहीं, फिर भी काम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, करप्शन पर रोकना भी है। सारे पसमानदा इलाकों में पाकिस्तान रेलवे पहुंचेंगे। हम मोंचोदड़ो तक ट्रेन लेकर जाएंगे। और अगली अहम खबर कहते हैं कि तमाम लोगों को यकीन दिलाते हैं ईमानदारी से काम करेंगे। आईजी सिंध का ये कहना है सिंध पुलिस के शोधा को सलाम पेश करता हूं, जो अच्छे काम हुए उसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। कराची में काफी पेचीदगियां हैं, हमारी कोताही को निशानदही करे। सिंध पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आईजी कलीम इमाम का ये कहना है पुलिस के फराइज चैलेंजेस से भरपूर हैं। आईजी सिंध की जानिब से कहा गया हमारे हर अच्छे काम और कोताही की निशानदही करें। जो अच्छे काम हुए उसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। यकीन दिलाते हैं कि हम नेक नियति से काम करेंगे। क्या में अमन को यकीनी बनाएंगे। आईजी सिंध कलीम इमाम की जानिब से यह कहा गया वो मज़ार कायद पर फातह खानी कर रहे थे और कराची में यह इजलास मुनाकिद किया गया। तमाम लोगों को यकीन दिलाते हैं ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा कहा गया है आईजी सिंध की जानिब से। सिंध पुलिस के शुहदा को सलाम पेश करता हूं, जो अच्छे काम हुए उसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। जबकि कराची में काफी पेचीदगियां हैं, हमारी हर कोताही की निशानदही करें। सिंध पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आईजी कलीम इमाम कहते हैं कि पुलिस के फराइज चैलेंजेस से भरपूर है। हमारे हर अच्छे काम और कोताही की निशानदही करें। जो अच्छे काम हुए हैं इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। यकीन दिलाते हैं कि हम नेक नियति से काम करेंगे, हम को यकीनी बनाएंगे। आईजी सिंध कलीम इमाम का ये कहना है। कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी और फातिहा ख्वानी भी की। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आईजी सिंध का ये कहना है कि तमाम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। सिंध पुलिस के शोधा को सलाम पेश करता हूं। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।